आज हमारा बेसिक जो है जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग फिर डोम और वोम को डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि किस तरह से बेसिकली हमें इसमें काम करना है। तो चलिए आज फिनिश करते हैं बेसिक पार्ट को। और जेसन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ डीबगिंग। डीबगिंग क्या है? ठीक है, सो एरर्स कैन विल हैपन एवरी टाइम you write some new computer code. So code debugging programming code might contain syntax error or logical error. So many of these errors are difficult to diagnose. So often when programming code contains error, nothing will happen. So there are no error message and you will get no indications where to search for error. Searching for and fixing errors in programming code is called कोड डीबगिंग। ठीक है, सो डीबगर्स क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट डीबगर्स डीबगिंग इज नॉट इजी बट फॉर्चुनेटली ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स हैव अ बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट डीबगर। built in debugger can be turned on or off, forcing error to be reported to the user. So with a debugger you can also set breakpoint places where code execution can be stopped and examine variable while the code is executing. So normally otherwise follow the steps at the bottom of this page. You activate debugging in your browser with the F12 key or select console in the debugger menu. So earlier we already discussed about console with the developer options where we can see what error is going on. Okay, so the console.log method, if your browser support debugging, you can use console.log to display JavaScript value in the debugger window. So फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फाइल है जिसमें हमने लिखा है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू a प्लस b। तो अगर मैं c को कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो ये मुझे F12 करने पर ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। सो क्लिक ऑन रन एग्जाम्पल एंड प्रेस F12 एंड सी इनटू योर कंसोल। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर टोटल जो है मैं रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है 5 प्लस 6, तो आपका टोटल कितना 11। तो यहाँ हम कंसोल पर देख पा रहे हैं इस चीज़ को। तो कंसोल पर हम लोग अपना खुद का भी कुछ लिख सकते हैं और कंसोल हमें एरर भी रिटर्न करता है जिसको हम लोग डीबग करते हैं। टिप, रीड मोर अबाउट द कंसोल डॉट लॉग मेथड इन आवर जावास्क्रिप्ट कंसोल रेफरेंस। So setting breakpoints in the debugger window, you can set breakpoint in the JavaScript code. At each breakpoint, JavaScript will stop executing and let you examine JavaScript values. After examining values, you can assume the execution of code typically with a play button. So the debugger keyword stops the execution of JavaScript and calls, if available, the debugging function. So this has the same function as setting a breakpoint in the debugger. If no debugging is available, the debugger statement has no effect. So with the debugger turned on, the code will stop executing before it executes the third line. So here we have a variable let x equal to 15 multiply with 5। debug कर रहे हैं हम लोग इसको और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है 75। ठीक है, और कंसोल अपना यहाँ पर क्लीन है। सो विद द डिबगर टर्न ऑन, द कोड बिलो शुड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग बिफोर इट एग्जीक्यूट द थर्ड लाइन। नेक्स्ट, मेजर ब्राउजर डिबगिंग टूल्स। नॉर्मली यू एक्टिवेट डिबगिंग इन योर ब्राउजर विद F12 एंड सेलेक्ट कंसोल इन द डिबगर मेन्यू। आपको यहाँ पर आना होता है, ये आपको कंसोल यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है इस तरह से। अदरवाइज फॉलोज दीज स्टेप, जैसे क्रोम, ओपन द ब्राउजर, from the menu select more tools, from tools choose developer tools and finally select console. इसी तरह से Firefox में open the browser from the menu and select web developer, finally select the web console. तो Chrome में होता है only console, Firefox में होता है web console, Edge में आपको console के नाम से मिलेगा। Edge में आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे इसके लिए, यहाँ से developer tool ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको console मिल जाएगा इसके अंदर। इसको सेट लेटर कर लीजिए। सो हेयर वी हैव कंसोल। तो यहाँ पर आपको एरर्स वगैरह जो होते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास फायरफॉक्स होगा, वैसे मेरे पास होगा नहीं ना, नहीं मेरे पास फायरफॉक्स, तो सभी की अपनी अलग अलग कमांड्स हैं। ओपेरा में भी इसको कंसोल बोलते हैं और सफारी में भी इसको हम लोग शो एरर कंसोल के नाम से जानते हैं।
So, did you know debugging is the process of testing, finding, and reducing bugs, errors in computer programs? The first known computer bug was a real bug, an insect stuck in the electronics. सो दिस इज़ अ डीबगिंग जिसको आप F12 की हेल्प से रन करेंगे. बात करेंगे स्टाइल गाइड की. JavaScript style guide always use the same coding conventions for all your JavaScript projects. So JavaScript coding conventions are style guidelines for the programming. They typically cover naming and declaration rules for available, so for variables and functions, rule for the use of white space, indentation and comments, programming practices and principles. Coding conventions secure quality, improve code readability, make code maintenance easier. So coding conventions can be documented rules for team to follow or just be your individual coding practice. Variable names. We use camel case for identifier names, variables and functions. All names start with a letter. At the bottom of this page you will find a wider discussion about naming rules. So जैसे कि अगर हमारे पास है फर्स्ट नेम तो हम लोग फर्स्ट एन को कैपिटल बनाएंगे इस तरह से. तो दिस इज कॉल्ड कैमल केस. इस तरह से ये राइट अप्रोच होता है कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने का कैमल केस में, जब भी 2 वर्ड्स के लिए आप बनाएंगे. स्पेसिस अराउंड ऑपरेटर्स. ऑलवेज पुट स्पेसिस अराउंड ऑपरेटर्स, जैसे कि लेट एक्स स्पेस वाई प्लस के अराउंड स्पेस. तो आपको इस तरह से स्पेस लगाकर काम करना होता है. VS कोड यूज़ करें तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा. अगर आप नोटपैड में काम करें तो आपको मैनुअली पुट करना होता है इन सब चीज़ों को. कोड इंडेंटेशन. ऑलवेज यूज 2 स्पेस फॉर इंडेंटेशन ऑफ कोड ब्लॉक. जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 स्पेस होने चाहिए. टैब वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है. डू नॉट यूज टैब टैबुलेटर फॉर इंडेंटेशन. डिफरेंट एडिटर्स इंटरप्रेट टैब डिफरेंटली. इस चीज़ के लिए ध्यान में रखिएगा. स्टेटमेंट रूल्स. जनरल रूल्स फॉर सिंपल स्टेटमेंट. ऑलवेज एंड अ सिंपल स्टेटमेंट विद अ सेमीकॉलन. तो जैसे ये हमारा कांस्टेंट कार है तो ये लाइन यहाँ पर ओवर हो गया तो यहाँ पर सेमीकॉलन. इसी तरह से ये हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट नेम के बाद कॉमा, लास्ट नेम के बाद कॉमा. इस तरह से जब ये ओवर हो जाए तो यहाँ पर भी सेमीकॉलन. So general rules for complex compound statement. Put the opening bracket at the end of the first line. Use 1 space before the opening bracket. Put the closing bracket on a new line without leading space. Do not end a complex statement with a semicolon. ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर सेमीकोलन आगे बंद नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा. लूप्स की अगर बात की जाएगी तो लूप्स में आप इस तरह से डिफाइन करेंगे. कंडीशनल्स की बात की जाएगी तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे. बात करते हैं ऑब्जेक्ट रूल्स. जनरल रूल्स फॉर ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस. प्लेस द ओपनिंग ब्रैकेट ऑन द सेम लाइन एज द ऑब्जेक्ट नेम. यूज कॉलन प्लस 1 space between each property and its value. Use quotes around string value, not around numeric value. Do not add a comma after the last property value pair. Place the closing bracket on a new line without leading space, and always end an object definition with a semicolon. सो एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पर एक अपना वेरिएबल बनाया, ऑपरेटर के अराउंड लेफ्ट राइट में स्पेस, कर्ली ब्रेसेस, नेक्स्ट लाइन में हमने अपनी सारी चीज़ को डिफाइन किया और इसको हमने ओवर कर दिया है. शॉर्ट ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन कंप्रेस्ड ऑन 1 लाइन यूजिंग स्पेसिस ओनली बिटवीन प्रॉपर्टीज लाइक दिस. तो इसको आप मल्टी लाइन ना बना के इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. ये अप्रोच भी आपकी एक्सेप्टेबल है. लाइन लेंथ इज लेस देन 80. For better readability, avoid lines longer than 80 character. If a JavaScript statement does not fit on 1 line, the best place to break it is after an operator or a comma. So जैसे कि document.getElementById demo.innerHTML equal to, तो आप equal to के बाद इसको ब्रेक कर सकते हैं. बट अगर आप यहाँ ब्रेक कर देंगे बिफोर equal to तो ये काम नहीं करेगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं हेलो डॉली का मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है और ये हमने ब्रेक करके लिखा हुआ भी है इस तरह से. नेक्स्ट, नेमिंग कन्वेंशन की बात करेंगे. ऑलवेज यूज द सेम नेमिंग कन्वेंशन फॉर ऑल योर कोड. फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल एंड फंक्शंस नेम्स written as camel case, global variable written in upper case. We don't, but it's quite common. Constant like pi written in upper case. So should you use hyphens, camel case or underscore
in variable names? This is a question programmer often discuss. The answer depends on who you ask. So hyphens in HTML and CSS, HTML5 attributes can start with data hyphen quantity, data hyphen price. CSS use hyphens in property names जैसे कि font size, font family, इस तरह से. So hyphen can be mistaken or as subtraction attempts. Hyphens are not allowed in JavaScript name. So जब भी आप कोई वेरिएबल नेम बनाएंगे तो उसमें हाइफन का यूज नहीं करना है. You can use underscore or you can use camel case. Underscores, many programmers prefer the use to use underscores जैसे कि date underscore of underscore birth, especially in SQL database. So underscore are often used in PHP documentation. Pascal case is often preferred by C programmer, and camel case is used by JavaScript itself or by jQuery and other JavaScript library. So remember one thing, do not start name with a dollar sign. It will put you in conflict with many JavaScript library names. Like आपने कोई वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में डॉलर से बना दिया चलेगा, बट जब वो jQuery में जाएगा तो वहाँ क्लैश कर जाएगा आपका. ठीक है. सो लोडिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML, so use simple syntax for loading external script. The type attribute is not necessary. So script src myscript आपने सिंपल इस तरह से लिखना है और आपका जावास्क्रिप्ट जो होगा एक्सटर्नल वो कॉल हो जाएगा. प्रीवियस प्रैक्टिसेस में क्या होता था, हम लोग टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखा करते थे. अब वो चीज़ डिसकंटिन्यू हो चुकी है. 2014 के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते हम उसको. बात करेंगे एक्सेसिंग HTML एलिमेंट. A consequence of using untidy HTML styles might result in JavaScript error. So these two JavaScript statement will produce different result. Like constant object equal to get element by id demo and constant object equal to get element by id demo. ये हमने इस तरह से डिफाइन किया. तो ये टू JavaScript statement will produce different result. D अलग काम करेगा, ये अलग चलेगा. So if possible use the same naming convention as JavaScript in HTML. अगर इस तरह से लिख रहे तो इस तरह से डिफाइन करिए, अगर इस तरह से लिख रहे तो सिर्फ इस तरह से डिफाइन करेंगे. फाइल एक्सटेंशन. HTML files should have a .html extension. .html is also allowed. CSS files should have a .css extension and JavaScript files should have a .js extension. Use lowercase file names. Most web server, Apache, Unix are case sensitive about file names. जैसे london.jpg cannot be accessed as a london.jpg यानी कि टाइटल केस. Other web servers, Microsoft and Internet server are not case sensitive. London.jpg can be accessed as london.jpg or london.jpg. तो दोनों ही तरह से पॉसिबल है. So if you use a mix of upper and lower case, you have to be extremely consistent. If you move from a case insensitive to case sensitive server, even small error can break your website. To avoid these problem, always use lowercase file name, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखाया है कि जब भी आप कोई फाइल बनाएंगे उसका नेम ऑलवेज स्मॉल में ही होगा. नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस. कोडिंग कन्वेंशंस आर नॉट यूज्ड बाय कंप्यूटर. मोस्ट रूल्स हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. So indentation and extra spaces are not significant in small script. For code in development, readability should be preferred. Larger production script should be minimized. तो जैसे कि अब आप आगे सीखेंगे jQuery या जैसे आप सीखेंगे bootstrap, तो वहाँ पर आप नोटिस करेंगे हम लोग जो भी फाइल होगी उसमें min dot का हम लोग यूज़ करेंगे. तो मैं वैसे आपको CSS में ऑलरेडी min dot पढ़ा चुका हूँ. बात करते हैं मिस्टेक्स. कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके डिस्कस करते हैं. दिस फाइल पॉइंट्स आउट सम कॉमन जावास्क्रिप्ट मिस्टेक एक्सीडेंटली यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर. सो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स में जनरेट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ अ प्रोग्रामर एक्सीडेंटली यूजेज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ अ कंपैरिजन ऑपरेटर इन एन इफ स्टेटमेंट. सो दिस इफ स्टेटमेंट रिटर्न्स फॉल्स एज एक्सपेक्टेड बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 10. ठीक है, तो ये आपको एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा. इफ स्टेटमेंट रिटर्न्स ट्रू मे बी नॉट एज एक्सपेक्टेड बिकॉज 10 इज ट्रू. तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है जबकि x की वैल्यू तो 0 है.
तो ये गलत होना चाहिए था। तो इक्वल टू और डबल इक्वल टू में ये डिफरेंस आ जाता है। द इफ स्टेटमेंट रिटर्न फॉल्स मे बी नॉट एज एक्सपेक्टेड बिकॉज जीरो इज फॉल्स। तो ये आपको यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो जीरो क्या होता है आपका फॉल्स के लिए होता है, वन क्या होता है ट्रू के लिए होता है। तो ये ध्यान रखना है मेन चीज़ों का कि जब भी हम लोग कुछ कंपैरिजन की बात करें तो सिंगल का यूज़ नहीं करना है, सिंगल असाइनमेंट के लिए होता है। कंपैरिजन के लिए डबल या ट्रिपल इक्वल टू। तो डबल में हम लोग वैल्यू को बराबर चेक करते हैं कि भाई 10 है या नहीं है, और टाइप वाला जो होता है ट्रिपल इक्वल टू, उसमें आपका टाइप भी चेक होगा कि जो आपका 10 है वो डबल कोट में है कि डायरेक्ट लिखा हुआ है। सो एन असाइनमेंट ऑलवेज रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द असाइनमेंट। Expected loose comparison. In regular comparison, data type does not matter. The if statement returns true. जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर उसी बात पर आ गए, x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू भी 10 है, लेकिन एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। लेकिन इस केस में ये ट्रू है आपके लिए। अगर आप इसको रन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि वो 10 को चेक कर रहा है, टाइप को चेक नहीं कर रहा है। इन स्ट्रिक्ट कंपेरिजन डेटा टाइप्स डज मैटर, द इफ स्टेटमेंट रिटर्न फॉल्स। यानी कि अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं ट्रिपल इक्वल टू, तो अब ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा इस केस में, क्योंकि डेटा तो सेम है लेकिन टाइप डिफरेंट है, एक नंबर है और एक टेक्स्ट है। सो इट इज़ अ कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट दैट स्विच स्टेटमेंट यूज स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। द केस स्विच विल डिस्प्ले एन अलर्ट। हमने लिखा x इक्वल टू 10, स्विच करेंगे x को, केस है 10, अलर्ट करेंगे हेलो, और ये देखिए यहाँ पर मुझे हेलो रिटर्न कर रहा है इस तरह से। ठीक है, सो द केस स्विच विल नॉट डिस्प्ले एन अलर्ट। मैं अगर यहाँ जाके लिखता हूँ द स्विच केस विल नॉट डिस्प्ले एन अलर्ट, केस 10 हमने यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख दिया, तो ये देखो यहाँ पर आउटपुट ही नहीं आ रहा है इसका। कंफ्यूजिंग एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन। एडिशन is about adding number and concatenation is about adding string. In JavaScript, both operators use the same operator. Because of this, adding a number as a number will produce a different result from adding a number as a string. For example, let x equal to 10. हमने लिखा x equal to 10 plus 5. Now x की value is 15. Let y equal to 10. Then हमने लिखा y plus equal to 5. Now y is 105. क्यों? क्योंकि ये string है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 105. सो व्हेन एडिंग टू वेरिएबल इट कैन बी डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट द रिजल्ट। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर x और y के अंदर दो डिफरेंट वैल्यूज इक्वल टू, हमारा टोटल सही हो गया। हम लिखा x और y में डिफरेंट वैल्यू, तो ये आपको 105 आपको रिटर्न करता है उस केस में। मिस अंडरस्टैंडिंग फ्लॉट। फ्लॉटिंग आपको पता ही है क्या होता है, डबल या तो पॉइंट में हम लोग वैल्यू लिखते हैं। ऑल नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट आर स्टोर्ड एज 64 बिट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसको लोग फ्लॉट्स बोलते हैं। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट हैव डिफिकल्टीज विद प्रिसाइज फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू। लेट x इक्वल टू 0.1, लेट y इक्वल टू 0.2, और अगर आप इनको टोटल करेंगे द रिजल्ट इन z विल नॉट बी 0.3, बिकॉज ये है तो फ्लॉटिंग नंबर बट आपने इनका टाइप जो है वो फ्लॉट में नहीं डाला हुआ है, तो आपको 0.4 रिटर्न करेगा कुछ इस तरह से। To solve this problem above, it helps to multiply and divide. हम यहाँ लिखेंगे let z equal to x multiply 10 plus y multiply 10 divided by 10. अब ये आपको 0.3 जो है वो रिटर्न कर देगा इस केस में। Breaking a JavaScript string. JavaScript will allow you to break a statement into 2 lines. So जैसे कि हमने लिखा let x equal to hello world न्यू लाइन में, आप देखेंगे hello world हमारा काम कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटर के बाद में आप ब्रेक कर सकते हैं। बट ब्रेकिंग अ स्टेटमेंट इन द मिडल ऑफ अ स्ट्रिंग विल नॉट वर्क। लाइक अपने हेलो के बाद में ब्रेक करके वर्ड को अलग कर दिया, तो ये काम नहीं करेगा। सो इन दिस केस यू मस्ट यूज अ बैक स्लैश इफ यू मस्ट ब्रेक अ स्टेटमेंट इन अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप स्लैश लगाएं और ब्रेक करें, तभी आपका वर्क कर जाएगा इस केस में। misplacing semicolon. Because of misplaced semicolon, this code block will execute regardless of the value of x. If x 2 time equal to 19 एग्जाम्पल के तौर पर, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हेलो। चलो चेक करके देखते हैं इसका कोड। हमने लिखा x इक्वल टू 5, x 2 टाइम इक्वल टू 19, तो यहाँ पर ये मुझे हेलो रिटर्न करे। तो देखो ऊपर x है, यहाँ पर x जो 19 है, तो वो यहाँ पर आपको हेलो रिटर्न कर रहा है। ब्रेकिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट. If a default JavaScript behavior to close a statement automatically at the end of a line, because of this, these two examples will return the
सेम रिजल्ट। तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, इस वजह से इसने इसको सही में रीड कर दिया, ठीक है, इस सेमीकोलन की वजह से। अगर मैं ये नहीं लगाता तो ये मुझे फॉल्स होता उस केस में, और इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिलता देखने के लिए। चलिए, ब्रेकिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट, it is a default JavaScript behavior to close a statement automatically at the end of a line. Because of this, these two examples will return the same result. तो हमारे पास क्या है, फंक्शन माई फंक्शन ए पैरामीटर लेट पावर इक्वल टू 10, हमने रिटर्न करा ए मल्टीप्लाई पावर, ए की पावर निकालो तो आपको 550 जो है वो रिटर्न कर रहा है इस केस में। एग्जाम्पल 2 में हम लोग आते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे इसका आउटपुट आपको इस तरह से 550, द एग्जाम्पल विल रिटर्न अ करेक्ट रिजल्ट, ठीक है, इस तरह से आपको मिल रहा है। सो जावास्क्रिप्ट विल ऑल्सो अलाउ यू टू ब्रेक अ स्टेटमेंट इनटू 2 लाइन्स। तो ये अप्रोच भी सही है और ये अप्रोच भी सही है, 2 लाइन्स। बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल 3 विल ऑल्सो रिटर्न द सेम रिजल्ट। हमने लिखा लेट पावर इक्वल टू 10 रिटर्न ए मल्टीप्लाई पावर, तो ये भी आपको 550 रिटर्न करेगा इस केस में। बट वॉट विल हैपन इफ यू ब्रेक द रिटर्न स्टेटमेंट इन 2 लाइन्स लाइक दिस, लेट पावर रिटर्न ए। अब ये आपका अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों हुआ, द फंक्शन विल रिटर्न अनडिफाइंड, वाई, बिकॉज जावास्क्रिप्ट थॉट यू मीन्ट इस तरह से कि रिटर्न आपकी ये लाइन यहाँ खत्म हो गई है और उसके बाद नया आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया इस तरह से। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेटमेंट होता है ये रीड कर रहा था कि वो क्लोज हो रहा है खुद से, क्योंकि जैसे ये लाइन है तो ये लाइन आपकी ओवर, सॉरी। तो इफ अ स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट लाइक लेट, तो जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय रीडिंग द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर लेट था, पावर 10 था, तो उसने एक लाइन यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर लिया उसको। जावास्क्रिप्ट विल ट्राई टू कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय रीडिंग द नेक्स्ट लाइन, बट सिंस द स्टेटमेंट इज कंप्लीट रिटर्न, so JavaScript will automatically close it like this. This happens because closing ending statement with semicolon is optional in JavaScript. So JavaScript will close the return statement and at the end of the line because it is a complete statement. So never break a return statement. Return को कभी break नहीं करना अपने इस तरह से, otherwise error आपको मिलेगा। बात करेंगे एक्सेसिंग एरे विद नेम इंडेक्सेस। मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट एरे विद नेम इंडेक्सेस। एरे विद नेम्ड इंडेक्सेस आर कॉल्ड एसोसिएटिव एरे और हैशेस। जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एरे विद नेम्ड इंडेक्सेस। सो इन जावास्क्रिप्ट एरे यूज नंबर्ड इंडेक्स। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पर जॉन, डोए, 46 तीनों को एक साथ लिख सकते हैं तो कॉमा लगा के, या फिर आप इस तरह से बता सकते हैं कि कॉन्स्टेंट पर्सन इज अ एरे, 0 पोजीशन पर जॉन, 1 पर डोए, 2 पर 46, और हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे तो हमें 3 रिटर्न करेगा, 0 को फैच करेंगे तो हमें जॉन रिटर्न करेगा यहाँ पर, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूज नेम्ड इंडेक्सेस। इफ यू यूज अ नेम इंडेक्स व्हेन एक्सेसिंग एन एरे, जावास्क्रिप्ट विल redefine the array to a standard object. So after the automatic redefinition, array methods and properties will produce undefined or incorrect result. तो जैसे कि पर्सन में लिखा फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, लास्ट पर्सन के अंदर लास्ट नेम की है, उसके अंदर दो है, इस तरह से हमने सबको डिफाइन कर दिया। तो इस केस में यहाँ पर आपको 0 रिटर्न करेगा लेंथ में, और जब आप 0 को फैच करने जाओगे तो आपको अनडिफाइंड रिटर्न है, क्योंकि अब यहाँ पर नेम इंडेक्स है तो आपको लिखना पड़ेगा पर्सन के अंदर फर्स्ट नेम, तब आपको डेटा मिलेगा। तो एंडिंग डेफिनेशन विद अ कॉमा, ट्रेलिंग कॉमास इन ऑब्जेक्ट और एरे डेफिनेशन आर लीगल इन ECMAScript 5। सो जैसे कि हमने लिखा पर्सन फर्स्ट नेम जॉन कॉमा लास्ट नेम डोए कॉमा एज 46, तो ये आपका चल जाएगा इस तरह से। एरे में हम लोग 40, 100, 1, 5, 20, 10 इस तरह से लिखेंगे। तो क्या होगा, वार्निंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर एट 8 जो होगा वो क्रैश हो जाएगा, जेसन डज नॉट अलाउ ट्रेलिंग कॉमा। तो यहाँ पर कॉमा नहीं होना चाहिए, ये जो लास्ट में। सो जेसन में आपका करेक्ट जो मेथड होता है वो ये बनता है, और नंबर अगर लिखना है तो ये बनेगा, तो ये जेसन में नहीं ट्राई करना। अनडिफाइंड इज नॉट नल। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वेरिएबल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स कैन बी अनडिफाइंड। In addition, empty JavaScript object can have the value null. This can make it a little bit difficult to test if an object is empty. So you can test if an object exists by testing if the type is undefined.
सो इफ टाइप ऑफ माई ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेम है, ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड, तो यहाँ से हम लोग इसको चेक करेंगे क्या है वैल्यू, ट्रू। तो इसको चेक कैसे करें, तो हमने लिखा टाइप ऑफ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और माई ऑब्जेक्ट ट्रिपल टाइम इक्वल टू हम लोग चेक करें अनडिफाइंड, तो ये ट्रू, तो सही बता रहा है। बट यू कैन टेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज नल बिकॉज दिस विल थ्रो एन एरर इफ द ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड। सो अब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये आपको नल पर क्या बोलेगा, एरर थ्रो। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू मस्ट टेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट नल और नॉट अनडिफाइंड बट दिस कैन स्टिल थ्रो एन एरर। सो हम लोग माई ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड, नल और टाइप ऑफ माई ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड। So because of this you must test for not undefined before you test for not null. So correct syntax होगा type of this undefined and this. तो इस केस में आपको ये false रिटर्न करेगा। तो ये है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर होने वाली कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली हम लोग कर जाते हैं अपने काम में। बात करते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, हमारे कोड को हैवी बनाती है, तो इसको हम लोग परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करें। So how to speed up your JavaScript code? Reduce activity in loops. Loops are often used in programming. Each statement in a loop, including the for statement, is executed for each iteration of the loop. Statements or assignment that can be placed outside the loop will make the loop run faster. So bad approach क्या है, हम लोग इस तरह से लिखते हैं let I equal to 0, I is less than array dot length और I plus plus। बेटर कोड क्या है कि हम लोग एक वेरिएबल में बाहर ही इसको निकाल लें। हमने लिखा एल बोले तो लेंथ इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, और हमने यहाँ पर एल को कॉल करा दिया इस तरह से, आई इज लेस देन एल। और ये तो ये अप्रोच सही नहीं मानी जाती, ये अप्रोच सही है, काम दोनों से सेम ही आएगा लेकिन सही तरीका ये वाला है। द बैड कोड एक्सेस द लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरे ईच टाइम द लूप इज इटरेटेड। द बेटर कोड एक्सेस द लेंथ प्रॉपर्टी आउटसाइड द लूप एंड मेक्स द लूप रन फास्टर। तो दोनों में आउटपुट सेम है लेकिन ये स्लो चलेगा, ये तेज चलेगा। रिड्यूस डोम एक्सेस, एक्सेसिंग द HTML DOM is very slow compared to other JavaScript statement. If you expect to access a DOM element several times, access it once and use it as a local variable. So constant object document.get element by id demo और object के अंदर आप इसको define करें, ना कि document.get element by id dot inner HTML करके आप डायरेक्ट लिखें इस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखें, ये सही अप्रोच मानी जाती है। डोम साइज को रिड्यूस कैसे करें, सो कीप द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द HTML DOM स्मॉल, सो दिस विल ऑलवेज इम्प्रूव पेज लोडिंग एंड स्पीड अप रेंडरिंग पेज डिस्प्ले स्पेशली ऑन स्मॉलर डिवाइस। एवरी अटेम्प्ट टू सर्च द DOM लाइक गेट एलिमेंट बाय टैग नेम विल बेनिफिट फ्रॉम अ स्मॉलर DOM। अवॉइड अननेसेसरी वेरिएबल, do not create new variables if you do not plan to save values. Often you can replace code like this, like let full name equal to first name plus और उसमें last name. So यहाँ पर आप inner HTML full name लिखेंगे तो दोनों चीज़ आपकी एक ही में काम कर जाएंगी। और इसको आप इस कोड को often you can replace code like this और with this, तो आपका काम करेगा। Delay JavaScript loading, putting your script at the bottom of the page body lets the browser load the page first. While a script is downloading, the browser will not start any other downloads. In addition, all parsing and rendering activity might be blocked. So the HTTP specification defines that browser should not download more than 2 components in parallel. So an alternative is use defer equal to true in the script tag. The defer attribute specifies that the script should be executed after the page has finished parsing, but it only work for external script, ठीक है। So if possible you can add your script to the page by code after the page has loaded, इस तरह से। तो हमने लिखा window dot onload function element document create element script element dot src myscript dot js और element dot body append child element, यानी कि जो एलिमेंट हमारा स्क्रिप्ट टैग का वो ऐड हो जाए। अवॉइड यूजिंग विद, अवॉइड यूजिंग द विद कीवर्ड, इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन स्पीड, इट ऑल्सो क्लटर अप जावास्क्रिप्ट स्कोप, द विद कीवर्ड इज नॉट अलाउड इन स्ट्रिक्ट मोड। सो सचिन, ये थी हमारी जावास्क्रिप्ट जिसमें हमने सीखा कि परफॉर्मेंस को कैसे बेटर करना है, क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हमारी,
कैसे डिबग करना है, क्या स्टाइल करने की गाइड है, वो सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्लास पे जब आप आओगे ऑफलाइन तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डोम एंड बोम, ठीक है। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि डोम और बोम किस तरह से बेसिकली वर्क करते हैं। तो शुरुआत हम आज की डेट में कर सकते हैं यहाँ पर। MWF हमारा बैच टाइम है 10:30 to 12 और मार्च 25 का फोल्डर बना लेंगे। टुडेज 10/03/25 और ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया इसका। ड्राइव चेक कर लेते हैं आपकी 10:30 से 12। तो आपके पास यहाँ डेटा अवेलेबल है। न्यू फोल्डर 7/3/2025 और 10/3/2025। तो 7 तारीख वाली क्लास में हम लोगों ने जेसन तक अपना पार्ट कंप्लीट किया था। ये डेटा डाल देते हैं आपका, ये अपलोड हो जाएगा साइड बाय साइड। तो चलिए VS कोड में आते हैं और ओपन करेंगे अपना फोल्डर। D ड्राइव और MWF 10:30 से 12 सेलेक्ट दिस लोकेशन। और यहाँ पर ये हमारा मार्च का फोल्डर है, ठीक है। जीरो 7/03/25। ठीक है, तो यहाँ हमने अपनी जावास्क्रिप्ट जो है कंप्लीट कर ली है इसके अंदर। अब डोम और वोम वाला जो पार्ट है वो हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास से शुरू कर देंगे इसके अंदर, तो आपका वो वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो हम अगर देखें अपनी फाइल कि हमने जावास्क्रिप्ट किस डेट में स्टार्ट किया था, तो हमने 10 फरवरी को स्टार्ट किया था और 10 मार्च को हमने अपना JS मोटा मोटी अपना कंप्लीट कर दिया पूरे 1 महीने के अंदर, है ना। तो ठीक है सचिन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंप्लीट करते हैं अपनी बाकी की चीज़ें, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, फाइल आपके साथ शेयर है ऑलरेडी। थैंक यू।